Hello my dear students. So let's continue with our next topic, which is a exercise numerical number 7. I am reading the question. A horizontal straight wire 10 meter long. See, you have a wire which is a horizontal and it is a 10 meter long. So length is a 10 meter. Extending from east to west. Let's say this is the east and this is the west. Is falling with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field, which is 0.30 into 10⁻⁻4 Weber per meter square. So you have a horizontal component of Earth's magnetic field, that means you have BH, and the value of BH is given by 0.30 into 10⁻⁻4 Weber per meter square. Ready? Your rod is falling perpendicular to this magnetic field. So if we assume that our rod is falling in this direction, then you have to draw a magnetic field such like that the direction of magnetic field and the direction of velocity becomes perpendicular to each other. In that case, we can draw the magnetic field in this manner. Cross represents what? Cross represents magnetic field is inside the paper. So magnetic field is inside the paper, rod is here and velocity is in this direction. Ready? So that are perpendicular to each other. You have given the speed of rod falling, which is a 5 meter per second. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? Instantaneous EMF means वही मोमेंट पे, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे EMF कितना है. So the formula of instantaneous EMF is given by E is equal to BLV, because here EMF is produced by the means of motion. So E is equal to, here we have to use BH, and the value of BH is given by 0.30 into 10⁻⁴. Length is a 10 and the velocity is given by 5. Ready? So by solving it, you will get the EMF is 1.5 millivolt. Now second is, what is the direction of the EMF? We need to find the direction of EMF. So let's solve it. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? जैसे कि रॉड है, तो रॉड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या तो यहाँ पे आ जाएंगे या तो यहाँ पे आ जाएंगे. अगर मान लो पॉजिटिव यहाँ आते हैं तो नेगेटिव यहाँ आ जाते हैं, और पॉजिटिव यहाँ आते तो नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे. बट वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली कि कौन कहाँ पे आएगा. सो लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, this is the y axis and this is the z axis. Now here we can say that there are positive and negative, both the charge particles, and as the rod is falling, we can say positive and negative charge are also falling with the some velocity. So we can use the formula charge particle moving in the magnetic field. So there is a force on the charge particle, F is equal to Q V cross B, है ना. जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में, सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, ये प्लस y, नीचे माइनस y. सो वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन होगा माइनस j कैरेट. रेडी? एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, तो बाहर आ रहा है z, तो अंदर जा रहा है माइनस z. सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ माइनस k कैरेट डायरेक्शन. सो वी कैन से फोर्स इज अ q v b
माइनस जे क्रॉस माइनस के. Now let's see I cross j is equal to k. Standard 11. J cross k is equal to I. K cross I is equal to j. So here we can use the formula minus j cross minus k. But we have formula j cross k is I. तो पहले अगर मैं माइनस जे रखूंगा तो माइनस जे क्रॉस के माइनस आई. बट मैं माइनस के भी रखता हूं तो वापिस वो हो जाएगा प्लस आई. सो दिस विल गिव यू द आंसर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी आई कैरेट, बिकॉज माइनस जे क्रॉस माइनस के विल बिकम आई. सो वी कैन से कि फोर्स एक्टिंग, व्हाट दिस फॉर्मूला सेज अस, फोर्स एक्टिंग ऑन plus q charge is in the direction of I caret. It is in the direction of I caret. Ready? So this is means the force acting on the positive charge. Force acting on the positive charge is in the plus x direction. मतलब यहाँ पे होगा. So जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहां पे आ जाएंगे. सो वी कैन से कि ये आंसर हो गया हमारा. क्वेश्चन में जो सी फाइंड करना है वो विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो जो ईस्ट वाला एंड है, सी का आंसर आएगा ईस्ट एंड बिकम्स at higher potential and west end becomes at lower potential. Okay, so now B का आंसर फाइंड करना बाकी है. भाई B कौन सी आंसर में आएगा, मीन्स हमारा EMF कौन सी डायरेक्शन में होगा. EMF पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रोड्यूस होता है ना. EMF कौन सी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. So EMF will be in east to west direction. So I hope you all are able to visualize the problem and able to understand the problem. इसके बाद आता है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 8. बट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया था. So directly we will start the exercise numerical number 9. A pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry. Maybe you have some coils which are placed very close to each other. That's why they have used the word adjacent coils. And the mutual inductance is given by, let's say this coil is a 1 number coil, this is the 2 number coil, and mutual inductance is given by 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20, means first coil का current of coil number 1 initial, पहले नंबर की coil का initial current कितना था, 0, एंड वही फर्स्ट नंबर की कॉइल का फाइनल करंट हमारा अब हो रहा है 20 एम्पियर. एंड दिस हैपन्स इन द टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड. व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अनदर कॉइल. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द चेंज इन फ्लक्स in another coil. Ready? So we know the formula. Flux 5, we have to find change in flux in the another coil, means another coil means second number coil. So flux of second number coil is equal to M21 I1. Ready? So second coil का initial flux means M21 I1 का initial current and flux 2 का
सेकेंड कॉइल के फ्लक्स की फाइनल वैल्यू मीन्स इनिशियल कॉइल का फाइनल करंट। सो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई मीन्स फाई टू सेकेंड कॉइल का फ्लक्स फाइनल माइनस सेकेंड कॉइल का फ्लक्स इनिशियल। लेट्स पुट द वैल्यू M21 I1F minus M21 I1I. So we can say delta phi is equal to, let's make common M21, so I1F minus I1I, I1F minus I1I. So M21 आपको M की वैल्यू दे रखी कितनी 1.5, सो यहाँ पे डाल दो 1.5 and I1F is a 20 and I1I is a 0. Ready? So directly we can say delta phi is a 1.5 into 20 and 1.5 into 20 is given by 30. So 30 Weber. This is the unit of flux. Ready? Or you can say Tesla into meter square. दोनों यूनिट हो सकते हैं इसके. Okay, so it is seems to be very easy numerical. Now let's see the numerical number 10. A jet plane is traveling towards west at a speed of 1800 km per hour. So let's draw the jet plane. This is the east, then this must be west because our jet plane is traveling towards the west, and the speed is given by the speed is 1800 kilometer per hour. If we convert it into meter per second, so it will become 500 meter per second. What is the voltage difference developed between the ends of the wings? ठीक है, इसके जो दो विंग्स है, ये दो विंग्स में कितना वोल्टेज डेवलप होगा, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द EMF. Ends of the wing having span of 25 meter means length between these two wings. Length between these two wings is 25. That means length is given by 25 meter. If the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 is to minus 4, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, and this total magnetic field is a 5 into 10 is to minus 4 Tesla, and here the deep angle delta is given by 30, है ना. डीप एंगल को डेल्टा भी बोल सकते हैं, शायद हमने कैपिटल डी भी बोला था, फाई भी बोल सकते हैं, जो भी हो वो, ठीक है. सो राइट नाउ आई एम डिनोटिंग इट बाय डेल्टा. ये डेटा दिया हुआ है. नाउ लेट्स विजुअलाइज द प्रॉब्लम. मान लो कि ये अर्थ है एंड ऑब्वियसली प्लेन जो है वो ऐसे सरफेस पे ट्रैवल कर रहा होगा. ठीक है. नाउ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वी नो दैट देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ऐसे होता है, जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट. लेट्स से दिस इज द BV वर्टिकल कंपोनेंट, है ना. हमने चैप्टर 5 में इसको कुछ ZE करके डिनोट किया था, इसको अभी मैं BV बोल रहा हूँ. एंड दूसरा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन BH, जिसको हमने चैप्टर 5 में कुछ HE करके डिनोट किया था. एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस. अब EMF फाइंड करना है हमें. EMF कब मिलेगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होगा? तो अर्थ का ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो ऐसे होता है ये डायरेक्शन में. सो व्हेन द प्लेन इज ट्रैवलिंग, एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग, उसके जो विंग्स होते हैं ना,
द विंग्स आर कटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज प्लेन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है, ठीक है। सो द विंग्स आर कटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड. So if here any kind of magnetic flux change produces, अगर यहाँ पे कोई सी भी काइंड का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी उसके लिए बीवी, क्योंकि बीवी को वो कट कर रहा है, बीएच के तो पैरेलल ही उड़ रहा है प्लेन. सो यहाँ पे ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू बी एल वी, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कॉम्पोनेंट लिखना पड़ेगा, बीवी. एंड we know that BV is equal to B sin डेल्टा, चैप्टर 1 है ना. हमें तो ये जो दिया है ना B, वो ये दिया है. सो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ पे एंगल बनेगा डेल्टा, डीप हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है. सो दिस इज द B cos डेल्टा, दिस इज द B sin डेल्टा. सो BV इज इक्वल टू B की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड डेल्टा. सो साइन डेल्टा इज साइन 30, बिकॉज डेल्टा की वैल्यू जो है वो हमें 30 दे रखी है यहाँ पे. सो BV इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴, साइन 30 इज 1/2. सो BV इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला. So EMF is equal to BV 2.5 into 10⁻⁴, and length is a 25 और velocity जो है वो 500 है, ठीक है. So EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो after solving this you will get the EMF of 3.125 volt, ठीक है. तो ये डेटा है, पहले हमें ये BV फाइंड करना पड़ेगा और BV की वैल्यू यहाँ रखनी है. रेडी. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो रही है. अब हम एडिशनल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे बिकॉज वो हमारी बुक में से, सिलेबस में से निकल चुका है. एंड दिवाली इज ओवर बट स्टिल वी कैन नॉट फिनिश अवर पार्ट 1. सो हम एडिशनल एक्सरसाइज को बाद में देखेंगे आफ्टर द फिजिकल प्रेजेंस, है ना, इफ वी नीडेड. सो यहीं से डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट. शॉर्ट में लिखेंगे तो AC, ऑल्टरनेटिंग A और C मीन्स करंट AC. सो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ करंट. अभी आज के लेक्चर में तो, ये लेक्चर में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे. Basically there are 2 types of current, one is AC and one is DC. DC stands for direct current. What is the difference? Assume we have a bulb over here and the bulb is connected with the battery. And the same bulb is now connected with some AC source. So what is AC source? आपके घर में मोबाइल का चार्जर लगाने के लिए ऐसी पिन होगी वॉल पे, 3 पिन इस टाइप का, है ना, और बाजू में स्विच होगी, चार्जर यहाँ पे लगा के स्विच ऑन करते हो. सो ये जो 3 पिन होती है ना, उसमें से जो करंट बाहर निकलता है वो होता है AC. दैट मीन्स योर 3 पिन इज अ AC सोर्स. 3 पिन को हम ऐसे डिनोट करेंगे. बैटरी, आपके घर में ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो बैटरी से चलते हैं, बैटरी से चलने वाले क्या होते हैं, भाई रिमोट, क्लॉक, मोबाइल फोन, आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर गाड़ी में बैटरी होती है.
मीन्स जहां पे भी बैटरी होती है ना, वो बैटरी में से जो करंट निकलता है ना उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। बैटरी का करंट डायरेक्ट करंट होता है। और इसको बोलते हैं डीसी सोर्स, इसको बोलते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स में से जो करंट निकलता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट करंट। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट? मान लो ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट और 2 एम्पियर बैटरी की करंट की वाली है। फॉर एग्जांपल कि ये बैटरी वोल्टेज देता है 10 और करंट देता है 2 एम्पियर। सो व्हेन यू कनेक्ट द बैटरी, तो इसमें से जब भी करंट निकलेगा वो करंट की वैल्यू टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगी। ये 0, ये 2 एम्पियर। जैसे ही बैटरी ऑन करते हैं, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो हैविंग द सेम वैल्यू। सो यहां पे करंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। द ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ बैटरी। That's why this current is known as the direct current. Now, let's say our this AC source. Now, AC source current is little bit different than this. Why? In AC source, the current is constantly fluctuating. It is not the same like this. For example, 2 ampere and minus 2 ampere. Suppose this AC voltage has a maximum value of 2 ampere. So ये करंट कैसा होगा? टाइम के साथ वो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम हो गया, वापस डिक्रीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फिर वापस 0। दैट मीन्स हियर करंट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट डायरेक्ट लाइक दिस। द करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स फेज। कभी कभी पॉजिटिव फेज में चला जाता है, कभी कभी नेगेटिव फेज में चला जाता है। दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अ एसी करंट। रेडी? सो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में लास्ट थियरी जो देखी थी एसी जनरेटर। इन द एसी जनरेटर हमने एक ईएमएफ का फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू ओमेगा BAN साइन ओमेगा टी। एंड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन फंक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो यहां पे जो E मीन्स वोल्टेज है, दिस वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन दिस साइन फंक्शन। मतलब ये वोल्टेज ऐसा होगा, आपको एसी जनरेटर में जो भी वोल्टेज मिलेगा ना वो कांस्टेंट नहीं होगा वोल्टेज। जैसे करंट में ये डीसी और एसी होता है, वैसे वोल्टेज में भी होता है। सो यहाँ पे ये जो वोल्टेजेस हैं, द वोल्टेजेस विच वी आर गेटिंग इन एसी जनरेटर, these voltages are continuously changing with this function. That means this voltage is a AC voltage. हमें चैप्टर 6 की लास्ट थ्योरी में AC वोल्टेज मिला, इसलिए अब हम इसको स्टडी करेंगे कि भाई ये ऐसा कौन सा वोल्टेज है। हमने तो अब तक जो वोल्टेज देखा, जैसे कि भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सो दिस विल प्रोवाइड 10 वोल्ट ऑलवेज, बट हियर द वोल्टेज इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो ये चैप्टर में हमें देखना क्या है, हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या देखा था कि रेजिस्टेंस में बैटरी कनेक्ट करें तो क्या होता है। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा कि भाई इंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला में से V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। यहाँ पे वोल्टेज मिलता है E इज इक्वल टू L DI बाई DT। बट इंस्टेड ऑफ दिस बैटरी, अगर हम यहाँ पे AC सिग्नल यूज करें एंड वी प्रोवाइड AC वोल्टेज एंड AC करंट टू रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स, हेंस व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर गेटिंग, ये हमें देखना है। तो ये चैप्टर्स की थ्योरीज कैसी होगी
कि पहले रेजिस्टेंस को, सिर्फ रेजिस्टेंस को, ओनली रेजिस्टेंस को एसी के साथ कनेक्ट करो, देखो कि क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। फिर देखना है कि कैपेसिटर को एसी के साथ कनेक्ट करो, क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ इंडक्टर को एसी के साथ कनेक्ट करो, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देन वी विल कंबाइन दिस थ्री क्वांटिटीज एल, सी और आर, तीनों को कनेक्ट करके एलसीआर सर्किट बनाएगी। तीनों को मर्ज करके एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करो तो क्या होता है, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 7। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7। सो इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लेना, छोटा सा ही है, एक ही पेज का होगा, आधे पेज का, एंड सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना। आज मैं आपको वही ये जो भी चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसकी नोट्स जो है उसका पीडीएफ सेंड करूंगा। सो यू कैन सी हाउ टू राइट द न्यूमेरिकल्स, कि जो पैराग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें पैराग्राफ में क्या क्या लाइन्स, क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं, वो सब आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।